कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो विप्रो बिजनेस एम्पायर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है आजिम प्रेमजी बिजनेस एम्पायर डोनेटेड टू $21 बिलियन। हाउ बिग इज विप्रो? से स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, $21 बिलियन डोनेट करें। Hello and welcome to TFC. I'm Naveen. This time we will start our journey on a train, passing the dark tunnels and hilly mountains of Maharashtra. We have now reached this railway station, Amalner. This is the town where it all began. In 1945, Mohammad Premji started a company, Western India Vegetable Products Limited, and started manufacturing sunflower vegetable oil here in Amalner. This small vegetable oil company was later transformed by Mohammad Premji's son Azim Premji into what we now know as Wipro. In fact, in the year 2000, Azim Premji was the richest person in India. At that time, he was richer than Reliance, Hindustan Lever, and Infosys combined. To understand Azim Premji's journey, let's turn back the clock to 1966. We are now in California at Stanford University. Here, 21-year-old Azim Premji is studying engineering. That year, he received a sad news. His father, Mohammad Premji, has passed away. He hurriedly returned to India and later had to leave his studies to manage his father's business. ऑयल का He later focused on growing the business, added newer products. In the 1980s, he recognized the importance of the emerging IT industry. So he formed a company, Wipro Information Technology, and started manufacturing mini computers. And now, 37 years later, that vegetable oil company has transformed into a worldwide conglomerate operating in over 50 countries and has more employees than Coca-Cola and Intel combined. So let's get our tickets and start the tour around the world to witness Azim Premji and Wipro's massive business empire. Our first stop is North America, and we will land in Canada's biggest airport, Toronto Pearson International Airport. Wipro is the IT solutions provider of this airport. Moreover, Wipro also operates 3 business centers across Canada. Moving to the US, we will reach the coveted New York Stock Exchange. Wipro is one of the few Indian companies to be listed on NYSE. Moreover, in the US, the company owns a San Francisco-based user experience design company, Cooper, a Florida-based health insurance service provider, Health Plan Services, and a global cloud servicing company, Appirio. Wipro is also located in 40 locations across America and also operates an innovation center which is involved in developing AI-based innovations that include smart buildings and smart field equipments. In the US, the group also owns the leading crowdsourcing marketplace for developers, Topcoder, a financial services consulting firm, Opus, and also operates an aviation parts manufacturing plant in Washington state. Not only that, Azim Premji also holds personal investments in a business intelligence company, a payment service provider, a business automation company, an e-commerce fraud prevention startup, and a cloud computing firm based in California. From California, let us move to South America. Here, Wipro has delivery centers in Colombia, Chile, Argentina, and Brazil. In Brazil alone, the group employs over 1,400 people and also operates a 2-acre hydraulics manufacturing plant in Sao Paulo. Moving to Africa, here Wipro operates delivery centers in 8 countries that include Kenya, Nigeria, and Zambia. Meanwhile, in South Africa, the company has carried out internship programs for graduates from disadvantaged backgrounds and is also jointly working with the South African government to provide computers and libraries to rural schools in South Africa. From Africa, let us travel to Europe and reach the birthplace of Lego toys, Denmark. Here, the group owns the award-winning design firm Designit
In nearby Germany, the group owns an IT consulting firm, Celent AG, and also operates hydraulic manufacturing facilities in Finland, Sweden, and Romania. Moreover, in Europe, Wipro operates IT development centers in over 15 countries. In the UK alone, Wipro has 10 development centers and is also the technology partner to the famous Chelsea Football Club. As we have reached UK, let's take a walk on London's famous Bond Street. This street was home to the first retail store of the iconic brand Yardley London. Now, the historic Yardley London is also owned by Wipro and is sold in over 40 countries worldwide. From London, we will travel all the way to Australia and reach Sydney. Here, the group has recently acquired a popular design agency, Seift. Their clients include major companies like Qantas and Commonwealth Bank. Moreover, Wipro also operates 4 IT development centers here in Australia. From Australia, we will travel to Asia and will land in the enchanting Malaysia. Here, Wipro owns one of the biggest FMCG company of Malaysia, Wipro Unza. The group manufactures Safi, the highest selling skincare brand and popular toothpaste brand in Malaysia, Bioessence, the leading facial brand in Malaysia, Singapore and Taiwan, Romano, one of the most popular shampoo and body spray in Vietnam, Wipro's Enchantura and Vitalis are the highest selling female fragrances in Indonesia, while in China, the group owns one of the leading FMCG company, Zhongshan Daily Products, and also manufactures top-selling Chinese brands like Banli, Ziki, and Enier. Moreover, Wipro also operates IT centers in 8 countries in eastern part of Asia that includes Indonesia, Japan, and Philippines. Moving to the rest of Asia, Wipro has over 4,000 employees in the Middle East and Bangladesh. In Saudi Arabia, the group has jointly established a multi-million-dollar women's business park, while the group also operates an aerospace manufacturing plant in Israel. Finally, after the world tour, we have reached India. Here, Wipro is India's 3rd largest IT company and operates over 40 business centers across India. The group's billion-dollar FMCG company owns major brands like Santur, Chandrika soaps, Glucovita glucose powder, and leading switches brand Northwest Switches. The company also manufactures LED lights, detergents, and baby products. Wipro's other major company, Wipro Infrastructure, manufactures airplane actuators used in aircraft landing gears, 3D printed transmitters for space missions, and also provides industrial wastewater services. The company is also the world's largest independent hydraulic cylinder manufacturer. Meanwhile, Azim Premji's personal investment fund is estimated to be over $3 billion, bigger than LIC Mutual Fund. His investments include Domino's Pizza, SBI General Insurance, FMCG companies Imami and Marico, retail brands Big Bazaar and Fab India, startups Lenskart and Policy Bazaar. Moreover, Azim Premji has not only created a worldwide conglomerate, but he has also donated $21 billion worth of his stake in Wipro to his charity, Azim Premji Foundation. The charity foundation has established a university in Karnataka. Azim Premji Foundation now has over 1,000 employees and is working with over 350,000 government schools to improve education in rural India. To end it all I can say is that Azim Premji has certainly transformed his father's vegetable oil business into a worldwide business empire. जी जनाब अभी नया शाहकार अभी हम टाटा के इस शहर से निकले नहीं थे। मेरे भी सेम यही अल्फाज विप्रो का कमाल। अच्छा, आपको कुछ पता था, आइडिया था विप्रो के हवाले से? नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल हम ऐसा लग रहा है मैंने पहले कभी वीडियो नहीं देखी। हम बिल्कुल एक ब्लैंक थे, सिफर थे विप्रो के हवाले से। नहीं, विप्रो की एक वीडियो देखी है शायद, नहीं, बहुत नहीं, शॉर्ट नहीं, सी थी वो। नहीं विप्रो शायद हमने मतलब रिचेस्ट पर्सन्स देखे थे ना जब इंडिया के, शायद उसमें मैंने विप्रो देखा था।
लेकिन वैसे इंडिविजुअली जैसे हम टाटा को जानते हैं, महिंद्रा को जानते हैं, वैसे हम विप्रो को नहीं जानते। अच्छा, स्टार्टिंग कितने छोटे लेवल से ऑयल के काम से हुआ, उनके अपने अब्बू का, अच्छा फादर का था, वो भी अचानक इन्हें आना पड़ा और स्टडी छोड़कर फिर उसके बाद बिजनेस देहांत हो गया था बिजनेस में, और फिर उसके बाद इन्होंने मेहनत की, तरक्की की, कई बिजनेस में हाथ डाला। मैंने ये देखा है जितने भी बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंट्री नहीं होता, अपना कंट्री नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ना, पूरी वर्ल्ड होता है। देखिए साउथ कोरिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, कहाँ नहीं है इनके ब्रांड्स। देखिए, जब आप एक चीज़ बनाने लग जाते हैं और उस चीज़ में आप महारत हासिल कर लेते हैं तो वो चीज़ आपके पास इतनी क्वांटिटी में होती है कि अब आपको चाहिए होती है मार्केट। ठीक है। फिर आप वही चीज़ के प्लांट दूसरे कंट्रीज़ में लगाते हैं, मज़ीद उस काम को बढ़ाते हैं, यानी कि आपके प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है, दुनिया में हर इंसान को ज़रूरत है उस चीज़ की जो आप बना रहे हैं, तो हर जगह वो पहुँचती है फिर। अच्छा, हम कितना फ़ख्र महसूस करते हैं बाहर के ब्रांड्स यूज़ करके कि फॉरेनर है, इम्पोर्टेड है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि इंडिया से ये चीज़ें साउथ कोरिया, अमेरिका, यूरोप, क्या क्वालिटी होगी इन चीज़ों की, क्या प्रोडक्ट्स होंगे, जब वो लोग इनकी ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 100% प्योर होंगी, खालिस होंगी, या क्वालिटी वाइज एक स्टैंडर्ड होगा तभी जाकर। अच्छा, एक बात है कि आप क्या कहती हैं कि देखिए उन्होंने एजुकेशन छोड़ी और एजुकेशन छोड़ने के बाद वो बिज़नेस में आए और आज कई एजुकेटेड लोगों को जॉब देते होंगे, तो एक अगर सवाल किया जाए कि एजुकेशन मस्ट है या अपना बिज़नेस, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो बिजनेस के लिए भी तो एजुकेशन मस्ट है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी चीज़ों की तो फिर आप कैसे लेकर, देखिए अगर मैं 4 वर्कर्स रखती हूँ अपने पास, अब मुझे वो मशीन चलाने की खुद ही नॉलेज नहीं है तो मैं 4 वर्कर्स को कैसे बताऊंगी कि आप काम गलत कर रहे हो। अच्छा, कहीं हमारे पास ऐसी मिसालें भी हैं जो अनएजुकेटेड लोगों ने भी बिजनेस किया अपनी जहानत से। मैं इस चीज़ को भी प्रायोरिटी देती हूँ। आपका जो क्वेश्चन था उसको जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तो उसका जवाब ये बनता है कि एजुकेशन तो मस्ट है, उसकी चॉइस नहीं है, लेकिन एजुकेशन हासिल करने के बाद आप किसी के पास जॉब करो, इससे बेटर है कि आप अपना बिजनेस करो। बिल्कुल ठीक है, जो मैं माहौल देख रही हूँ, जो एनवायरनमेंट देख रही हूँ, अच्छा, इतना टाइम एक शख्स लगाता है एजुकेशन में तो वो एक अच्छी खासी उम्र दे देता है, ठीक है, यानी वो तकरीबन जवान हो चुका होता है, अब वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उससे बेहतर ये है कि इंसान अपना पहले बिज़नेस स्टार्ट करे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं हमारे पाकिस्तान को लेके कि कई लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसी मिसालें हैं, मोटिवेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारा तो पुराना तालीमी निज़ाम है और हम डिग्रियां जो ले रहे हैं वो कागज़ हैं। मतलब मैं अफसोस के साथ कि हमारी तालीम हासिल करने के बाद यहाँ पर अगर एक शख्स के अंदर वो चीज़ें नहीं आती, अगर उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं पैदा होती, तो उससे तो बेहतर ये है कि बंदा कोई अच्छा सा बिज़नेस करे। और इतने टाइम में मैं कुछ लोगों की सोच बता रहा हूँ कि 4-5 साल 10 साल में आप एक डिग्री लेते हैं, उसके बाद ख्वारियाँ उठाते हैं, दिखता है आपको, जगह जगह कंपनीज़ में जाते हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग अपनी एजुकेशन से कम वाली जॉब भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिली होती। सॉरी। अच्छा, उतना टाइम अगर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता, छोटा सा सिर्फ 5000 से, ठीक है, वो बिज़नेस कहीं ना कहीं खड़ा होता। एक माशरे की हकीकत बता रहा हूँ। तो क्या मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि तालीम बेकार है इंसान के लिए? मैं आपको बताऊँ तालीम कहाँ काम आती है। अब फॉर सपोज आप अनएजुकेटेड हो, ठीक है, आप बिल्कुल टोटली इलिटरेट हो, लेकिन आपको काम आता था, आपको कपड़ा बनाना आता था, आपको कुछ भी XYZ कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बनाना आता था, आपने वो बनाना शुरू कर दिया। अब उसका यकीनन हिसाब किताब होगा, एक मैनेजमेंट होगा, अकाउंटेंट होगा आपका। अब वो अकाउंटेंट आपको कभी भी डिच कर सकता है। जब आपको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, आपको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, कितना अमाउंट निकला, कितना अमाउंट गया, कितने में बिका, क्योंकि आपको तो है ही नहीं, पता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ब्लैंक हो ना इन चीज़ों को लेकर, आपको नहीं पता क्या होती है अकाउंटेबिलिटी, क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं चीट कर सकता है। लेकिन अगर अनदर साइड आप एजुकेटेड हो, आपको हर चीज़ आती है, आप हर चीज़ को देखते हो, हर चीज़ को प्रॉपर्ली चेक करते हो डेली बेसिस पे, उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हो बल्कि खुद भी चेक करते हो, तो जहाँ वो आपको चीट करेगा, ज़रा सा भी आप गबन देखोगे, ज़रा सा भी आप देखोगे तो आप फ़ौरन उसको पकड़ लोगे कि तुमने यहाँ पे गलत करा है, ये चीज़ गलत है, ये किस तरीके से हुआ, तुमने मुझे चीट करा है। अच्छा, आप इस चीज़ को एजुकेशन कह रही हैं? एजुकेशन कह रही हूँ कि आपको अच्छा, ये चीज़ें जो सूझबूझ है, सूझबूझ की बात, सूझबूझ ना कि यार कौन अच्छा है कौन बुरा है, और
अपने काम की कैलकुलेशन, अपने काम को क्वालिटी को देखना। अब एक इलिटरेट बंदा वो कैसे कर पाएगा ये सब? आपको कुछ पता? अच्छा ऐसे पेपर वर्क में ऐसे भी आपको कोई भी डिच कर सकता है, आपको नहीं पता क्या लिखा है, क्या कैसे पढ़ेगा? अच्छा ऐसे अनएजुकेटेड हमारे सामने मिसालें हैं, ऐसे अनएजुकेटेड में भी बड़ा बिजनेस किया समझदारी से, यानी कि उनका उठना बैठना। मिसाल के तौर पे तालीम आपको शऊर देती है, वही शऊर आपको अपने से बड़ों के साथ बैठ के, बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठ के मिलता है। तो आप अनएजुकेटेड होते हुए भी बाज़ दफ़ा अच्छा मेरा ये सारी बात करने का मकसद ये नहीं कि तालीम बेकार, ये मकसद नहीं। तालीम अपनी जगह आपको तो रोशन करती है, आपके दिमाग को खोल देती है। मतलब आप सिर्फ बिजनेस की बात करें ना, तालीम तो वैसे भी बिजनेस को भी हटा दे तो हर स्टेप पे आपका साथ देती है। तो मैं ये मानती कि तालीम बिल्कुल यूजलेस है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तालीम की वजह से लोग कामयाब हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनके अलावा अनएजुकेटेड लोग भी बिज़नेस करके बहुत कामयाब हुए हैं, ऐसी मिसालें भी हैं। लेकिन अनएजुकेटेड लोग, अब उनको नहीं पता होता, लोग उनको मतलब चीट करते हैं लेकिन वो पकड़ नहीं पाते। मैं ये कह रही हूँ कि 10,000 15,000 उनको फील ही नहीं हो पाता कि मुझे यहाँ से किसी ने चीट कर लिया या यहाँ से मेरे पैसे आगे पीछे हो गए। लेकिन इस चीज़ से बचा जा सकता है। अच्छा एक और मेन वजह कामयाबी की, आपके बिज़नेस की सबसे मेन वजह जो हमने और बिज़नेस में भी देखी थी, डोनेशन। मैं कहता हूँ कि आपकी तरक्की की बुनियादी वजह, आपका मेन, यानी यूँ समझ लो कि एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक शख्स ने, एक ऑटो पे बैठे हुए थे 2 शख्स। तो ऑटो वाले के, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं वो, ऑटो वाले के बने थे 3 रुपये। नहीं बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी। हाँ मतलब मैंने किताबों में पढ़ी जो। एक शख्स के किताबों में पढ़ी तो मतलब बहुत पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई। मैंने वीडियो में देखी। सुधर जाए तो बहरहाल कहानी डायनासोर की तो नहीं तो बहरहाल एक 3.5 रुपये किसी का रेंट बना रिक्शे वाले का। तो एक शख्स ने दे दिया उसे 4 रुपये। ठीक है कि यार अच्छा, इससे भी अंदाज़ा लगा ले कितनी पुरानी बात। वाकई तो उस शख्स ज़्यादा देती है। हाँ, तो उस शख्स ने ले लिया और चला गया। तो उसके उस्ताद ने उससे पूछा, बोला कितने दे दिए इसको? बोला मैंने इसको 3.5 बनते थे, 4 ही दे दिए, गरीब लोग होते हैं, मेहनत करते हैं। बोला 5 दे देते। तुमने कौन सा अपने पल्ले में से दिए? तुमने भी तो दिए में से दिए हैं ना, ठीक है ना। उसका कहने का मतलब ये था कि तुमने अपने पास से नहीं दिए। पल्ले मतलब अपने पास से नहीं दिए। अपने पास से नहीं दिए, तुम्हें भी कहीं से मिले हैं ना, अल्लाह पाक ने तुम्हें दिए हैं तो आपने आगे दिए। तो ये पैसे जो आपने किसी को दिए हैं अपने पास से नहीं दिए, आपने अपने नहीं दिए, समझो एक तरीके से आपको भी अल्लाह ने दिए तो आपने आगे दिए। ख़त्म। तो उस बात को शख्स नहीं समझा। अब आपको मैं आगे की बात बता रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगी। बहुत बड़े राइटर हैं वो। उस शख्स को ये बात पता चली तो उन्होंने, इस शख्स ने उनको बताया कि यार मुझे मेरे उस्ताद ने इस तरह कहा कि यार आप अपने पास से थोड़ी दिए, आपने 5 ही दे देते, आपने कौन सा जेब से दिए? पल्ले में से दिए में से दिए। अच्छा भाई, उसको समझ आ गई बात। उसने किसी को इस तरह से कुछ हेल्प कर दी, उसको 10 गुना ज़्यादा मिले। हेल्प की, उसको और मज़ीद मिले और मज़ीद मिले। फिर इनकी मुलाकात हुई आपस में। तो बोला यार ये तूने मुझे किस धंधे में लगा दिए? उस शख्स ने बोला, जिस शख्स को ये बात तीसरे को पता चली तो उसने बीच वाले को कहा कि तूने मुझे किस धंधे में लगा दिया? बोला क्या हुआ? बोला मेरे पास तो इतना आ रहा है कि मैं तो परेशान हूँ कि कैसे संभालूं। मतलब मैंने बाकायदा उसके एक अल्फाज अब सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगी। मैंने देना छोड़ दिया अब, कि मेरे पास तो इतना आ रहा है, देता हूँ मज़ीद आ जाता है, देता हूँ मज़ीद आ जाता है। बाखुदा ये अल्फाज हैं बंदे के, बहुत बड़े राइटर हैं पाकिस्तान के या इंडिया पाकिस्तान के या पाकिस्तान के उर्दू के। उन्होंने कहा मैंने इस वजह से लोगों को देना छोड़ दिया कि मेरे पास तो 10 गुना ज़्यादा आता है, मैं अब क्या करूँ इसका। कुछ लोगों की ज़रूरियात नहीं होती, कुछ लोग अपनी एक लाइफ को लिमिटेड रखते हैं कि पैसा आ रहा है तो हम ये कर लें वो कर लें। कुछ लोग किसी चीज़ पे ही शुक्र अदा कर लेते हैं। तो उसने बाकायदा कहा मैंने देना छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बात हो रही थी डोनेशन की। तो डोनेशन को लेके 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है। एक शख्स ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर आप अल्लाह की राह में फ़िक्स अमाउंट बांध देते हैं अपनी इनकम में से, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता अगले महीने तो आप मुझसे ले लें। इतना भी कई लोग कहते हैं कि 100% होता है। और सबसे सामने आपके ज़िंदा मिसाल हम बैठे हुए हैं कि हमने भी इस फार्मूले को अपनाया तो हम दिन ब दिन हमारे भी हिसाब किताब में बेहतर हो रहा है। इस वक्त कम से कम भी मतलब है कि बता दें, चलो नहीं बता दें, चलो नहीं बता, यानी इस वक्त
इतनी इनकम नहीं, इस वक्त हम इतनी इनकम डोनेट करते हैं हर मंथ कि पाकिस्तान में एक नॉर्मल एंड्रॉयड मोबाइल इंसान ले सकता है। नॉर्मल वाला एंड्रॉयड मोबाइल इंसान ले सकता है। हर मंथ अल्लाह का करम है, ईश्वर का करम हो गया कि डोनेट करने की वजह से एक इतनी अमाउंट डोनेशन में जाती है। अच्छा, फिर अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे इंशाल्लाह इनकम बढ़ेगी तो डोनेशन भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसका रेशो भी बढ़ेगा। तो मैं अब थोड़ा सा कुछ अपना प्रॉपर एक प्लान सोच रहा हूँ, कोई एक जगह हो, कोई एक चीज़ हो जिसमें लोगों को कम खिलाने का, जैसे सस्ता नाश्ता, यानी कि अगर नाश्ते की कीमत 50 रुपये है तो 10 रुपये का नाश्ता हो गया, या 10 रुपये का सालन रोटी हो गया, कुछ इस तरह का। इन फ्यूचर अभी 2-4-5 मंथ लगेंगे मुझे लगता है, लेकिन मेरे जहन में कुछ चीज़ें हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का साथ रहा, तो ये करना है। मैंने ये देखा है कि इंडिया में इस चीज़ को, मतलब जितने भी रिचेस्ट पर्सन्स हैं वो इन चीज़ों को बहुत फोकस देते हैं, बहुत मानते हैं कि मतलब लाजमी डोनेशन कुछ रखे ना रखे, डोनेशन स्कूल्स, वेलफेयर्स, हॉस्पिटल्स, इन चीज़ों पे फोकस बहुत ज़्यादा है। और कि जब वो स्टेबल हो जाते हैं और बहुत रिचेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी मनी अच्छे कामों में यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ ऐसे बड़े इदारे हैं, ईदी है, छिपा है। मैं आपको एक बात बताऊँ कि बाज़ दफ़ा ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि बड़ा दिल दुखता है, बड़ा अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े नाम हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स को हार्ट अटैक आया, उसके घर वालों ने, बच्चों ने कॉल की ईदी छिपा को या ईदी को, याद नहीं आ रहा नाम, पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यकीन करो, पता है क्या कह रहे थे? आप इतने पैसे जमा करा दें, हम आएंगे। वेलफेयर इदारा, एम्बुलेंसें इतनी घूम रही हैं, लोगों ने आम लोगों ने कितना डोनेट किया हुआ पता है इनको? पूरी 10-10, 5-5 एम्बुलेंस दी हुई हैं इन इदारों को कि आप लोगों की खिदमत करते हो, और वहाँ से अगला बंदा कहे कि आप 500 देंगे तो हम आएंगे। कितना दुख होता है। अच्छा, बहुत बड़े इदारों पे मतलब मुझे इतना बिलीव नहीं है कि यार हमारी अमाउंट पता नहीं सही जगह जाए या ना जाए, लेकिन ये है कि जितना इंसान अपने हाथ से ऐसे बंदे को दे या ऐसी जगह दे जहाँ पे उस तक सही जाए। फिर आप देखें, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ परेशानियों में भी होंगे, या बिज़नेस स्टेबल करने का सोच रहे होंगे, या कुछ छोटा मोटा स्टार्ट किया होगा। हमें 100% या मतलब उनकी एक लाइफ लिमिटेड चल रही होगी। मैं कहता हूँ हिम्मत करें, बाखुदा हिम्मत करें, थोड़ा सा शुरू से करें, 2% से करें, 3% से करें, 100 में से सिर्फ 2 रुपये करें। 1000 में से कितने हो जाएंगे? 100 रुपीज़ हो जाए। नहीं, अगर 200 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में, कम होंगे मेरे ख्याल में। 100 में से 2 रुपये बोल रहे हो? 100 में से 2 रुपये तो 1000 में कितने हो जाएंगे? 20 रुपये हो जाएंगे मेरे ख्याल। 10 हो जाएंगे। 10 रुपये तो करवाएं 100 में से 2 रुपये। 2% कह रहा हूँ, 100 में से 2%। 100 में से 2% तो 5, 10, 20, 50 हज़ार की अगर आपकी इनकम है तो उसमें थोड़ी सी 5-6 हज़ार रुपये की अमाउंट बनेगी। इस तरह से शायद कुछ बनेगी, कैलकुलेट कर लेना टीचर साहिबा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, देखिए ये चीज़ फिक्स नहीं है। आप 2% या 20% जो भी कह रहे हैं, बस कहने का मकसद ये है कि आप अपने अमाउंट में से एक फिक्स रेशियो रखें और उसको डोनेट। मैं कह रहा हूँ शुरू में थोड़ी कर लें, एक होता है ना डर होता है, 1% कर लें, 2% कर लें, वो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अमाउंट क्या है। हाँ, नहीं, मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100% मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोगों को 2-3 मंथ के अंदर, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, आप रिज़ल्ट देखेंगे और उसकी मिसालें आपके सामने। टाटा मौजूद है और विप्रो ने भी, हमें ये पता चला। अच्छा, अगर ये नहीं भी बताते तो मेरे जहन में ऐसा होता है कि अगर इतना बड़ा एक इदारा है जो IT को भी लेके काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग का काम, अच्छा नेटवर्किंग में ये लोग स्पेशलिस्ट हैं, किसी भी जगह नेटवर्किंग का, कहीं भी किसी भी जगह पे नेटवर्किंग का काम ये लोग संभाले हुए हैं। वैसे मैंने देखा है इंडिया में टफ कंपटीशन है इन चीज़ों को लेकर, बहुत टफ कंपटीशन। ये जैसे आप पाकिस्तान की बात करें तो हर मैदान खाली पड़ा है, बिल्कुल ऐसे कोई नहीं उतरा हुआ। एक और बात भी, मैदान खाली पड़ा है, चाहे आप रेलवे ले लें, ठीक है, मेट्रो वगैरह अगर कोई बनाया आज तो बहुत फेमस होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इसी तरह IT को लेकर कोई चले तो बहुत फेमस होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत रिचेस्ट हो जाएगा। इस बात को लेके और भी बात हो सकती है। एक बात मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, लेकिन बात बहुत लंबी हो जाएगी, किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे कि बाकायदा बाहर की कंपनीज आपके साथ काम करना चाहती हैं, आपके पास फिजिबिलिटी हो, आपके पास वर्किंग हो, लेकिन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, पूरा ऐसा रोड के कराची से लेके कश्मीर तक जा रहा हो, उस रोड पे बाहर की कंपनी आपके साथ बिजनेस करने को तैयार है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, हमने इतने प्रोजेक्ट्स देखे इंडिया के, क्या आपने देखा
कोई 10 लाख 12 लाख 13 लाख का प्रोजेक्ट देखा है। वो हो ही नहीं सकता पॉसिबिलिटी। बिल्कुल बिलियंस में मिलियंस में ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके भी होते हैं। तो कोई भी आपके साथ काम करेगा तो कम से कम एक बल्क में एक मैंने ह्यूज क्राइटेरिया इस वीडियो का जिक्र डिटेल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो, और जिस भाई ने हमें ये सजेस्ट की है, बहन ने की भाई ने की, भाई ने, जिस भाई ने हमें ये वीडियो सजेस्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी नॉलेज में एक बहुत बड़ा इजाफा, और ये नाम हम भूलने वाले नहीं हैं, विप्रो। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।